Bismillahirrahmanirrahim. In today's topic, we will discuss polyhydramnios. What is polyhydramniosis? Definition. It means excessive amount of amniotic fluid that is more than 2 liters is known as polyhydramnios. By ultrasound, the vertical diameter of the largest pocket of amniotic fluid measures approximately 8 cm or more, or the amniotic fluid index AFI is 25 cm or more. It can be classified into 3 types. One is mild, in which the single deepest pocket is in the range of 8 to 9.9 cm and amniotic fluid index is 25 to 29.9 cm. In moderate type, the single deepest pocket is approximately 10 to 11.9 cm and amniotic fluid index is 30 to 34.9 cm. In severe condition, you can find single deepest pocket to be more than 12 cm or amniotic fluid index is 35 cm or more. Incidence is 1 to 2% of all pregnancies. Mild hydramnios is the most common cause, comprising approximately 2/3 of cases, and moderate hydramnios account for about 20% and severe hydramnios approximately 15%. Common underlying causes of hydramniosis include basically fetal congenital anomalies, that is approximately 15%, and diabetes is 15 to 20%. इसके अलावा congenital infection and red blood cell alloimmunization, जिसको हम RH isoimmunization भी कहते हैं, these are reasons which are less frequent. RH isoimmunization आपको पता होगा, if mother is RH negative and if fetus is RH positive, so what will happen? The fetal blood comes in interaction with the mother's blood due to many reasons. तो वहाँ पे क्या होता है कि fetus का जो blood है वो क्या करता है, उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनते हैं. So that is actually known as RH isoimmunization. Infections that may present with hydramnios include cytomegalovirus virus, toxoplasmosis, syphilis, and parvovirus. These are the, you can say, infections जो आपको मिल सकते हैं polyhydramniosis में. Polyhydramniosis causes are the topmost is maternal diabetes, then multiple gestation, that means more than one fetus, isoimmunization that I have explained in the earlier slide. अगर mother RH negative है and the fetus is RH positive, even that could lead to polyhydramniosis condition. Pulmonary abnormalities might be a cause of polyhydramniosis. Fetal anomalies, जिसमें हमारे पास आ जाता है duodenal atresia या tracheoesophageal atresia, anencephaly. Twin transfusion means when there are twins and they are sharing placenta. You can say even in that case you will have polyhydramniosis. Trisomy 21, either it is you can say it is Down syndrome. इसके अलावा हमारे पास trisomy 18 भी हो सकता है, Edwards syndrome. Then is chorioangioma of placenta, again a benign condition of placenta where placenta is not normal. If mother is diabetic, that means there is maternal hyperglycemia. अगर maternal hyperglycemia है तो fetus पे क्या effect आएंगे, ये researchers कहती हैं कि fetal hyperglycemia हमें वहाँ पे मिलता है. अगर fetal hyperglycemia है तो ultimately fetus will be urinating more urine, right? Urinating वहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी, more urine, and this will add to what, amniotic fluid, जिसकी वजह से हमें polyhydramniosis की condition बहुत मिल रही होती. Congenital anomalies. The most common congenital anomalies that we come across is due to defect in central nervous system, और इसमें भी सबसे ज़्यादा important हमारे पास है anencephaly. Basically यहाँ पे fetal swallowing defect आया हुआ होता है, जिसकी वजह से fetus जो है swallow properly नहीं कर पाता और जितना भी जो fluid है वो contribute again back to the amniotic fluid, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, polyhydramniosis. इसके अलावा हमारे पास रीजन बन सकते हैं fetal neuromuscular disorders जैसे कि myotonic dystrophy. इसके अलावा obstruction of the fetal upper gastrointestinal tract, esophageal या duodenal atresia. Even these are all contributing factors for polyhydramniosis. Polyhydramniosis दो टाइप के होते हैं, acute polyhydramnios and the second is the chronic hydramnios. Acute polyhydramnios usually हम उसे कहते हैं जब 20 weeks of pregnancy से पहले हो रहा है, and usually देखा गया है पेशेंट में कि वो
उनमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है बिफोर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और इनके अंदर आपको क्या मिलता है, एक्यूट एब्डोमेन मिलेगा, एब्डोमिनल पेन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्निया विच इंक्रीजेस ऑन लाइंग डाउन पोजीशन, पैल्पिटेशन, एडिमा ऑफ लेग्स मिल सकता है आपको, वेरिकोसिटीज आपको मिल सकती हैं, हेमोरॉइड्स मिल सकते हैं। और साइन क्या होंगे, पेशेंट डेफिनेटली लुक्स इल विदाउट, इसमें कुछ शॉक का स्टेटस नहीं होता बट आपको मिल्स विदाउट एनी स्टेटस ऑफ शॉक। एडिमा ऑफ लेग मिल सकता है, इसमें आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मिल सकता है पेशेंट में। एंड एब्डोमेन इज डेफिनेटली इनलार्ज विद शाइनी स्किन। फ्लूइड थ्रिल इसमें आपको प्रेजेंट मिल सकता है। इंटरनल एग्जामिनेशन आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, जिसे हम कहते हैं फेसमेंट, यानी कि डायलिटेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होता है, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली एंड करेगा डिलीवरी में। इन क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियोसिस यू कैन सी देयर इज डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली हो रही होती है, जबकि एक्यूट में क्या होता है कि एकदम से लाइकर जो है वो बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको जो सिम्टम पेशेंट देगा दैट इज डिस्निया मिलेगा, आपको एडिमा मिल सकता है, ओलिगुरिया, एंड यू कैन से ओलिगुरिया मोस्टली आपको मिल रहा होता है ड्यू टू रिजल्ट फ्रॉम यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन बाय एनलार्ज यूट्रस एंड प्री-एक्लेम्प्सिया। डायग्नोस्टिक अप्रोच, इसके अंदर आप लोग डेफिनेटली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मदर की विद इन इन्वेस्टिगेशन फॉर डायबिटीज मेलाइटस टोनियोसे, डायबिटीज इंसिपिडिस या आयरिच आइसोमेनाइजेशन। इसके अलावा हम सोनोग्राफिक कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन कि वेदर शी कंफर्म करेंगे कि पॉलीहाइड्रोमनियोसिस है कि नहीं। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें जो है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जो है मोर देन 8 सेंटीमीटर मिल रहा है तो डेफिनेटली पॉलीहाइड्रोमनियोसिस है। अगर अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में हमें मोर देन 25 मिल रहा है तो वो पॉलीहाइड्रोमनियोसिस कहलाता है। इसके अलावा हम फीटल कैरियोटाइपिंग करेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। मेटल और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं सिफिलिस के लिए। हमारे पास एक मेडिसिन है इंडोमेथिसिन, बेसिकली ये है तो टोकोलाइटिक एजेंट, लेकिन इसका एक इफेक्ट ये आता है कि ये फीटल यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करवा देती है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली सेटअप में हम इसको कॉमनली यूज नहीं कर रहे होते। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर हमारे पास जो मैनेजमेंट का है दैट इज एमनियोसिंथेसिस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल कि हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं टू रिड्यूस दी अमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमाइनो रिडक्शन, जहाँ पे अगेन इट्स अ रिवीजन कि आपने एक सिरिंज जो है इंसर्ट करी है इनटू द एमनियोटिक सैक, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, और यहाँ से आप विड्रॉ करेंगे फ्लूइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियोसिस। पेशेंट को आप एडमिट करेंगे, उसकी जितनी भी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएंगे, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, ब्लड ग्रुप देखेंगे, आरएच ग्रुप उसका देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और फिर हमने ये देखना है कि फीटल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। अगर आपको फीटल एबनॉर्मलिटी कोई मिल रही है तो आपने फौरन क्या करना है, टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन। और कैसे करवा, उसके बाद क्या करवाएंगे, सर्वाइकल राइपनिंग और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप इंड्यूस करेंगे पेशेंट को, ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा सकते हैं, पेसरीज रख सकते हैं, एंड यू हैव टू अल्टीमेटली टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी। अगर कोई फीटल एबनॉर्मलिटी नहीं है दैट इज वेरी गुड। फिर आपने ये देखना है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को, मेडिसिन को, या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है वेल एंड गुड, फिर आप कंटिन्यू रखेंगे प्रेगनेंसी को। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई फीटल एबनॉर्मलिटी नहीं है मगर मदर जो है वो डिस्ट्रेस में जा रही है, फिर आपने देखना है कि जेस्टेशनल एज क्या है। अगर लेस देन 37 वीक्स है तो फिर आप क्या करवा सकते हैं, अमाइनो रिडक्शन। आप उसे वीकली, डिपेंड करता है उसके अमाउंट ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर, आप उसे कितने सेटिंग्स या कितनी सिटिंग्स के लिए बुलाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है प्रेगनेंसी इज मोर देन 38 वीक्स तो फिर आप अगेन अमाइनो रिडक्शन करवा सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीटोसिन ड्रिप यूज करवाएंगे, और कंट्रोल ARM आप वहाँ पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और इस प्रेगनेंसी को डिलीवर करवाएंगे डेफिनेटली फॉर आउटकम। अगेन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस, डेफिनेटली क्रॉनिक हाइड्रोमनियोसिस हमें पता है कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ग्रेजुअली हो रही है, और जो भी चीज ग्रेजुअली होती है पेशेंट उसे अडेप्ट कर लेता है। डिस्कम्फर्ट है लेकिन पेशेंट अडेप्ट कर लेता है।
तो ये क्रॉनिक हाइड्रोमनियोसिस की कॉम्प्लिकेशन में ही आता है। एक्यूट हाइड्रोमनियोसिस बेसिकली अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आपको प्री टर्म लेबर भी मिल सकती है, और जिसकी वजह से आपने इमीडिएट एक्शन लेना है, या तो आप अमाइनो रिडक्शन की तरफ जाएंगे या फिर आपने उसको डिलीवर करवाना है। Symptom may arise from pressure exerted within the over-distended uterus and upon adjacent organ. When distension is excessive, the mother may suffer dyspnea, orthopnea, and to such a degree that she may be able to breathe comfortably only in upright position. हम तभी एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो सीधी बैठे ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो. Edema may develop as a consequence of major venous system compression by the enlarged uterus, and it tend to be most pronounced in the lower extremities, vulva and abdominal. Again, there are complications maternal point of view से during pregnancy क्या हो सकता है? It can lead to abortion due to over distension of the uterus, preterm labor हो सकता है, premature rupture of membrane, कॉर्ड प्रोलैप्स या आप कह सकते हैं प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड आपको मिल सकता है. इट मीन्स के ड्यूरिंग डिलीवरी जो है जो कॉर्ड है वो पहले आती है या फिर किसी प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ आती है. अगर पॉलीहाइड्रोमनियोसिस कंडीशन है तो आपको प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड भी ये कॉम्प्लिकेशन है मिल सकता है. इसके अलावा अब्रप्शन प्लासेंटा मोस्टली ये भी देखा गया है कि बिफोर बर्थ क्या होता है ड्यू टू पॉलीहाइड्रोमनियोसिस आपको क्या मिल सकता है? प्लासेंटल अब्रप्शन. प्लासेंटा अपनी जगह से डिटैच हो जाता है. ये भी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है. पोस्टपार्टम हेमरेज ब्लीडिंग आपको मिलती है. यूट्राइन एटोनी ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस. होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी व्हाट हैपन, यूट्रस हैज टू गो बैक टू इट्स पोजीशन. उसकी टोन वापस आती है, लेकिन इन दिस केस यूट्राइन एटोनी उसकी टोन वापस नहीं आती है, वो एटोनी हो जाता है. रिटेन प्लासेंटा ये भी कंडीशन है कि बाज़-औक़ात प्लासेंटा जो है वो अंदर ही रह जाता है, डिलीवर नहीं हो पाता. या फिर प्रोलॉन्ग लेबर. अगर किसी को पॉलीहाइड्रोमनियोसिस कंडीशन है और ये पेशेंट नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको लेबर जो है नॉर्मल ड्यूरेशन से ज्यादा आपका ड्यूरेशन मिले, मे बी 16 आवर्स, मोर देन दैट. ड्यूरिंग परप्यूरल पीरियड द यूट्रस मे टेक अ लॉन्गर टाइम टू इनवोल्यूट सब इन्वोल्यूशन. हो सकता है कि वो जो 40 डेज का ड्यूरेशन होता है जिसमें जो जितने भी ऑर्गन्स है उन्होंने वापस से अपनी एनाटमी पे जाना होता है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको डिलेड मिले, डिलेड इन्वोल्यूशन. इस स्लाइड पे भी आपको दिखाया गया है कि मोस्ट कॉमन फीटल मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमनियोसिस कौन कौन सी है, ये आप लोग देख सकते हैं. वेल, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? अगेन ये रिपीटेशन है. क्रोमोसोम एंड डीएनए एनालिसिस, फील इन्फेक्शन है कोई या नहीं है, आरएच डिजीज, लंग्स मेच्योरिटी को देख सकते हैं, कोरियो एमनियोनाइटिस यानी कि कोई इन्फेक्शन है कोरियन या एमनियो. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइना बाइफिडा, एनेंकेफेली कंडीशंस. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग के थ्रू हम क्या देख सकते हैं. एक तो हम देख सकते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन AFP या फिर एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम ACHE. अगर ये आपको हाई मिलते हैं तो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई जो अनबॉर्न बेबी है, जो फीटस है, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स मौजूद है. पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड हाई मैटरनल सीरम AFP लेवल्स एंड नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग्स शुड बी ऑफर्ड एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग. यहाँ पे भी ये बताया कि अगर आपको मदर के अंदर सीरम AFP लेवल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आपको जाना चाहिए कि हम इस पेशेंट में एमनियोसिंथेसिस करवाएं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. एनी पेशेंट हु हैज हैड अ चाइल्ड विद अ न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट प्रीवियसली, फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हाई रिस्क पर होता है कि उसे इस करंट प्रेगनेंसी में भी जो है कोई ना कोई न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट आपको मिल सकता है. तो वहाँ पे फिर आप क्या करवाते हैं? AFP टेस्टिंग करवाते हैं, जो कि होता है किसके थ्रू? एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग के थ्रू ही हम करवा सकते हैं. Any elevation of AFP in amniotic fluid should lead to acetylcholine esterase analysis. अगर आपका AFP पॉजिटिव आता है उसके बाद आप फिर जाते हैं acetylcholine esterase enzyme analysis के ऊपर और कंफर्मेशन के लिए. Amniotic fluid testing should be performed at or before 16 weeks of gestation, and even if we can go for determination of fetal karyotype is also reasonable option. वो भी हम amniotic fluid testing से हम करवा सकते हैं. Thank you.